work, energy, and power. Universally, when you look at this topic anywhere on any reference book, digest, any other country, YouTube videos, you will always find three words: work, energy, and power. So, this chapter is about understanding these three concepts. That's all. It's not a difficult chapter, it's not a big chapter. It's fun if you pay attention. I'll start from the first word, trying to explain what is work. This is Shyam, and Shyam is finishing his homework. My question is he working? It depends. जॉब तो है नहीं, बट वर्क मतलब काम. वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. मम्मी आती है, मम्मी बोलती है शाम को, शाम चल गार्डन जाते हैं. शाम बोलता है नहीं मुझे काम है. नो मॉम, नॉट राइट नाउ, आई एम वर्किंग. सो श्याम इज वर्किंग राइट नाउ, ही इज डूइंग हिज होमवर्क. दिस इज रेचल. Rachel is in office and designing something for her client. She is also busy and she is working. This is Tom. Tom is a cook. He loves to prepare things, and right now he is recording an online lecture for his cookery class. He is also working. इसमें, do you think this girl in the orange sweater is working? She looks like she's sleeping and she's just sitting in a bus. Everybody's sitting in a bus. It feels as if she's not working. But to your surprise, साइंस में वर्क का डेफिनेशन बहुत अलग है. अकॉर्डिंग टू साइंस, श्याम इज नॉट वर्किंग, रेचल इज नॉट वर्किंग, टॉम इज नॉट वर्किंग. दूसरे सेंटेंस में बोलूं तो नो वर्क इज डन बाय श्याम, जीरो वर्क. जीरो वर्क इज डन बाय रेचल, जीरो वर्क इज डन बाय टॉम. तो टॉम, रेचल और श्याम आर्ग्यू करते हैं कि रुको यार रुको. टॉम बोलता है कि मैंने 7 डिश बनाई है, सुबह से यहां खड़ा हूं और 7 डिशेज आई हैव प्रिपेयर्ड. रेचल इज आई एम सिटिंग हियर सिंस 5 आवर्स, आई हैव प्रिपेयर्ड 20 प्रेजेंटेशंस. एंड श्याम इज लाइक आई हैव फिनिश्ड 50 सम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. फिर भी साइंस बोलता है जीरो वर्क डन. बट टीना जो सो रही है, वर्क इज डन बाय टीना. सो साइंस सेज work is done by Tina, and Tina herself is surprised that what work have I done. So science has a very funny way of considering what is work and what is not work. Let's see. You only tell me what is work and what is not done work according to science. तो ये सारी situation analyze करते हैं. The first situation is push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and pebble got displaced. In this situation, work is done. Pebble એટલે પથ્થરો. तो एक जगह पे पत्थर पड़ा था. उस पत्थर को तुमने मारा लाफा, और लाफा खा के पत्थर अपनी जगह से हिला और पहुंच गया थोड़ा सा दूर. एंड साइंस सेज वर्क इज डन. वर्क इज डन बाय whom? बाय you. वर्क इज डन on whom? On what? वर्क इज डन on the stone या पेबल. तो हाथ से फोर्स मारा और पेबल थोड़ा सा दूर चला गया. वर्क इज डन बाय साइंस. A girl pulls a trolley. આપણે સ્ટાર બજાર, બિગ બજારમાં જે ટ્રોલી હોય, તો a girl is pulling a trolley. The trolley moves through a distance. तो pull
and the trolley moves some distance. The girl has exerted some force. Of course, उसने हाथ से खींचा है तो लड़की ने कुछ तो फोर्स लगाया होगा. And the trolley gets displaced, therefore work is done. So girl applied force, trolley got displaced, work is done. Lift a book to a height. जमीन पे एक किताब पड़ी थी, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके लिफ्ट करो, उठाओ, तो बुक यहां पहुंच जाएगी. तो ये तुमने उठाया और यहां पे पकड़ लिया. टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई फोर्स. सो फोर्स इज अप्लाइड बाय योर हैंड और अप्लाइड बाय यू. द बुक rises up. There is force applied on the book and the book has moved. Hence work is done. Guess the two main words which decides work is done or not in science. एक होता है force और दूसरा displacement. It's a very simple topic. Work done in science is simply presence of force and displacement. कंपल्सरी दोनों होने चाहिए. हाथ से फोर्स लगाया, पत्थर डिस्प्लेस हो गया, वर्क डन. लड़की ने ट्रॉली को पुल किया, ट्रॉली अपनी जगह से हिली, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन. Somebody picked up a book by applying force and the book changed its position, work done. और वर्क डन में हमेशा बाय ऑन होता है. पेबल केस में वर्क इज डन बाय द हैंड और बाय द ह्यूमन बीइंग ऑन द स्टोन. कार्ट वाले केस में वर्क इज डन बाय द गर्ल ऑन द कार्ट और बुक में वर्क इज डन बाय द पर्सन ऑन द बुक. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वर्क डन नो. श्याम शायद हाथ से फोर्स देके लिख रहा है, बट श्याम की बॉडी वहीं की वहीं है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. रेचल वहीं बैठे बैठे काम कर रही है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. और टॉम भी एक जगह खड़े खड़े 7 डिश बना रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन. बट ये आंटी टीना सो रही है, फिर भी वर्क डन. Because Tina started from Ahmedabad and Tina is constantly traveling and she has reached Mehsana. तो displacement है. The force for her displacement is provided by the bus. बस की engine चल रही है तो bus is providing the necessary force. The engine of the bus is providing the necessary force. Therefore work is done by Tina. भले सो रही है मस्त. ऐसा काम होना चाहिए लाइफ में. सो जाओ. तो साइंस का डेफिनेशन फनी है एंड दैट फनी डेफिनेशन हैज टू मेन इंग्रेडिएंट्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो देयर इज अ बिग 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 डिस्कशन, बट ये डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ओवरऑल ये 3 चीज़ों से समझ में आ जाता है कि किसी भी टाइप का वर्क डन के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नेसेसरी. अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स that two conditions need to be satisfied for work to be done. काम होने के लिए पहला चाहिए फोर्स और दूसरा चाहिए डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हैज टू बी अप्लाइड बाय somebody and displacement has to happen to somebody. Then work is done by the object. अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पहले ये समझते हैं दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हाट. विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ गोल्फ. हॉकी लेते, इंडियन स्पोर्ट, देशभक्त. हॉकी स्टिक, हॉकी बॉल. हॉकी स्टिक को थोड़े से फोर्स के साथ बॉल को
मारो तो बॉल थोड़ा सा आगे जाएगा एंड देन इट विल स्टॉप. Ball got displaced and the force was applied by the stick. But हॉकी स्टिक को जोर से घुमा के एक बड़ा सा फटका मारो तो बॉल विल बी डिस्प्लेस्ड ओवर अ लार्जर डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्योंकि फोर्स ज्यादा. In both the cases, work is done, but obviously less work is done when less force is applied and less displacement happens. More work is done when more force and more displacement happens. इससे पता चलता है that the definition of work is nothing but work is the product of फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दिया हुआ फोर्स और पाया हुआ डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इज वर्क डन. किसी भी डिस्कशन में टाइम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. देर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. सी आई एम गोइंग बैक टू पिन पॉइंट दैट आई डिड नॉट स्पीक अबाउट टाइम एट ऑल. श्याम ने 50 सम्स किए लेकिन कितने घंटों में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. रेचल ने बोला मैं 5 घंटे बैठी थी, 20 प्रेजेंटेशन बनाए, बट किसी ने टाइम नहीं पूछा है. साइंस ने बोल दिया नो वर्क डन. टॉम इज लाइक आई एम स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग मेकिंग डिशेस. मॉर्निंग हो या नून, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट. एंड टीना हैज रीच्ड मैसाना, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन शी स्टार्टेड एंड हाउ लॉन्ग शी हैज बीन इन द बस. The girl pulls the trolley. In what time? क्या फर्क पड़ता है? You pushed the pebble and you picked up the book. वर्क में टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. Therefore, the formula of work done is force into displacement. दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज को फोर्स मिले और वो डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क इज डन. Can you store work? No. Can you feel or see work? No. Can you see Tina working? टीना तो सो रही है, हमको लगा ये तो सो गई, नो वर्क डन, बट एक्चुअली वर्क इज बीइंग डन बिकॉज देर इज डिस्प्लेसमेंट एंड देर इज फोर्स. तो वर्क जल्दी दिखता नहीं है. वर्क को तुम पकड़ सकते नहीं हो, वर्क को स्टोर नहीं कर सकते हो, वर्क को फील नहीं कर सकते हो. तो वर्क इज अ कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड. And how do you understand work? By understanding two things, force and displacement. तो ये केस में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्रिक है और ब्रिक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया. तो when force was applied on the brick, naturally the brick will move, and when the brick moved, naturally there will be some displacement. और दिया हुआ फोर्स और पाया हुआ डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड वर्क डन बाय द ब्रिक, बिकॉज ब्रिक गॉट डिस्प्लेस्ड. लेट्स रीड दिस. Thus, work done by a force acting on the object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. कुछ नहीं है, ये फैंसी साइंटिफिक लैंग्वेज में W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S बता रहे हैं. वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये रहा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब F मल्टीप्लाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब S. तो जो डिस्टेंस है या मेनली डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए.
अब अगर force is measured in newtons, so if I say that I applied 1 Newton force to the brick, if I say I applied 1 Newton force to the brick and the brick changes its position and gets displaced 1 meter far, brick 1 meter आगे चली गई, तो कितना काम हुआ? Work done is equal to force into displacement. Force applied is 1 Newton, displacement is 1 meter, 1 into 1 न्यूटन मीटर. तो अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे ब्रिक 1 मीटर आगे जाती है तो कितना काम हुआ? 1 न्यूटन मीटर. और ये पूरा ढूंढने वाले भाई साहब है जूल, JOULE. Joule is a name of the scientist who found out the definition of work. Therefore, we call 1 joule. Newton meter is joule. So 1 Newton meter is 1 joule, 10 Newton meter is 10 joules. तो 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे तो 1 जूल वर्क इज डन, ऐसे कहा जा सकता है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. Force applied 1 Newton, displacement achieved 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. But Newton meter को हमने बुलाया है joule. Therefore 1 joule is the amount of work done by 1 Newton force for a 1 meter displacement. क्या होगा? Force into displacement. Force 1 Newton, displacement 1 meter. It's the case of a brick जिसको पड़ा है थप्पड़, उसकी वजह से वो चला गया है आगे. What happens if you increase the force? If you increase the force, work done will increase. तो अगर यहां पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी 5 जूल्स इंस्टेड ऑफ 1 जूल. तो फोर्स बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा. एंड सेकेंड डिस्कशन इज फोर्स सेम है बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया. से ईंट हल्का था या अंदर से हॉलो था तो उतना ही पुश देने पे वो और आगे गया, तो क्या होगा? तो भी सेम. If displacement is more, तो 1 Newton force creates 3 meter displacement, तो भी work done increases to 3 joules. इतने से स्लाइड में लिखने का तात्पर्य ये था to tell you that force is directly proportional to the work done and displacement is directly proportional to work done. इसका उल्टा भी लिख सकते हो. Work done depends directly on the force and work done depends directly on the displacement. जितना ज़्यादा force उतना ज़्यादा work, जितना ज़्यादा displacement उतना ज़्यादा work. So now you know Tina and Meena are traveling in a bus, same bus. Tina went from Ahmedabad to Mehsana and Meena went from Ahmedabad to Bombay, Mumbai. Who did more work? बस वही है, इंजन वही है, साथ में बैठे हैं, सेम फोर्स है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज डिस्प्लेसमेंट. अहमदाबाद टू महसाणा इज 60 किलोमीटर. Ahmedabad to Mumbai is 560 kilometer. Therefore, work done by Meena is more than work done by Tina because of more displacement. Summary of work. Definition by heart करना पड़ेगा. Formula W is equal to F into S. SI unit. So W is equal to force into displacement. फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, देयरफॉर न्यूटन मीटर. लेकिन न्यूटन मीटर को हम प्यार से बुलाते हैं
जूल, और जूल को हम शॉर्ट में लिखते हैं जे। तो Ram kicked a ball with 20 Newton force and observed that the ball traveled 10-meter distance. Find work done by Ram. तो राम ने कितना काम किया? Work done is equal to force into displacement. Force provided by Ram was 20 Newton. Displacement was 10 meter. Therefore, 200 Newton. 200 joules of work was done. 200 joules. So this is the summary of work done. SI unit joule, etc. etc. न्यूमेरिकल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। एक ब्लॉक है जिसपे 5 न्यूटन्स का फोर्स पड़ा और वो फोर्स की वजह से 2 मीटर दूर चला गया। फाइंड आउट वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 5 2 are 10 joules. Over. A force of 7 Newton acts on an object. 7 Newton force मतलब धक्का, push, pull, something. Displacement 8 meters. Distance traveled हो या displacement इस चैप्टर में सेम है। तो फोर्स कितना? अरे वर्क डन कितना? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 7 इंटू 8, 56 joules is the work done by the object. अब work done are of two types, positive work and negative work, and it is super duper easy to remember that what is positive and what is negative. Force, displacement, force, displacement. अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। बट अगर फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क इज डन। बोल, है ना इजी? पॉजिटिव, नेगेटिव। और डे टू डे लाइफ में हम चीजें उठाते हैं, गिराते हैं, पटकते हैं, किक करते हैं, हम खुद हिलते रहते हैं, एंड वी आर डूइंग वर्क। When we are moving from one place to another, picking things from one place to another, everywhere work is being done. But some of the work is negative and some is positive. The girl is applying force in this direction. She is basically pulling the car. And when you pull the car will get displaced in the same direction. This is an example of positive work done. Negative work done कैसे होगा? Negative work done will be something like this. Brakes. इंजन का जो फोर्स है, इंजन वो गाड़ी को आगे लेके जाता है। Force of engine in this direction, displacement in this direction,
तो engine is doing positive work. जैसे बस कर रही थी जिसमें टीना बैठी थी, positive work done. But when you apply brakes, तो क्या होगा? The scenario will change. Why? Because engine की जगह अब force is applied by the brakes, and brakes का force उल्टे डायरेक्शन में होता है. तो क्या गाड़ी उल्टी चालू हो जाती है, रिवर्स गियर में पीछे जाती है? नो, द कार इज स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, लेकिन तुम ब्रेक्स मार रहे हो, मतलब फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है. एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन. सो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन and you are moving in forward direction, negative work done. Look at this pulley system. The lady is pulling the bucket by rotating the wheel in this direction. So her force from the hand is applied in downward direction. नीचे खींच रहे हो, but object या बकेट ऊपर जा रहा है. सो व्हेन यू लुक एट दिस सिस्टम, ये पुली की वजह से वर्क नेगेटिव हो गया. अगर पुली ना होता तो पॉजिटिव वर्क होता. देखो मैं पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल बता रहा हूं. दिस इज अ वेल वेयर दिस इज द लेवल ऑफ वाटर. वेल के अंदर बकेट है, और बकेट को तुम सीधा पुल कर रहे हो. सो योर हैंड इज अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बकेट इज ऑल्सो कमिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन पुली की वजह से चीजें इजी हो जाती है, और तुम्हारा हैंड अप्लाइज फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बकेट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन. जिम के अंदर नेगेटिव वर्क डन होता है. सोचो कैसे, एंड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप कि जिम के अंदर नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है. दैट्स ऑल. Numerical, it's very easy. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on the head 1.5 meter above the ground. Calculate work done. Porter એટલે કુલી lifts luggage of 15 kg, तो mass 15 kg, और 15 kg का वजन उठा के उसने सिर पे रख दिया. हाइट 1.5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैग 1.5 मीटर. पहले जमीन पे था, अब ऊपर आ गया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम. अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स तो दिया नहीं, तो ध्यान से देखना प्रीवियस चैप्टर्स नॉलेज. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल टू एम ए. ओके, लेकिन ए नहीं है. एम आ गया, एस आ गया, ए मतलब एक्सेलरेशन. नाउ एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब चीजें ऊपर नीचे होती है, फ्री फॉल, थ्रो अप, नीचे फेंको या ऊपर उठाओ, तो A becomes G. Finally, you have all the values. Mass 15 kg. G. अब G नेगेटिव लोगे के पॉजिटिव. तो रिमेंबर, whenever the object is going up against the gravitational force, take minus 9.8. And S distance traveled is
1.5. So 15 into 1.5 into minus 9.8, सिंपल कैलकुलेशन है 220.5 माइनस 220.5 जूल्स, न्यूटन में से बाहर आना पड़ेगा थोड़ा सा, वर्क इज डन. बट कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स, कुछ डाइजेस्ट, कुछ नोट्स में जी को 10 ले लेंगे. तो जी 10 लिया तो क्या, वापस मैं समझा रहा हूं, एक आदमी ने लगेज को सिर पे उठा के रखा, लगेज का मास 15 किलो और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लगेज 1.5 मीटर, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट एफ इज इक्वल टू एम ए, बट ए इज इक्वल टू जी, और जी को अगर 10 ले लिया तो मास 15, जी माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट 1.5, 225 जूल विल बी द राउंड फिगर आंसर. दोनों करेक्ट है, जी की वैल्यू अलग है इसलिए चेंज हो सकता है. टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो तुम देखना. Next question. A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. दो बुलक मिलके 140 न्यूटन धक्का देते हैं. द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग. 15 मीटर का लंबा खेत है तो डिस्टेंस ट्रैवल 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. एक लंबाई एक बार चल के जाएंगे तो कितना काम किया. Work is equal to F into S, 140 into 15, that's all, that's the answer. 2100 joules. Bullocks have done 2100 joules of work. That's all. 20 मिनट लगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, what is work. Thank you.